Okay. Now, in the last class or last lectures, we have discussed about the different components of computers. Okay. So, for just a brief uh, review, I will going to tell you what are the topics that we have already discussed. Now, we have discussed bio chips, cache memory, power supply, CPU slots, CMOS battery, IDE controllers, USB and floppy controllers, RAM slots, CPU chips, peripheral ports. Now, so this is the link of a website of a YouTube video where you can see a small briefing of hardware basics. Yes, does anyone have a question? Sir, I joined it, so okay, who is he? I mean, yes, I mean, I have marked your present. ठीक है, मैंने आपको present mark कर दी. Okay, so you have to see this thing. No, no issues. Now, today what we will do, we will start discuss about the processors. Now, as you can see, this is the processor. Basically, it's a brain of a computer. We all know that. प्रोसेसर क्यों जरूरी होता है? कोई मुझे बताएगा कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर की नीड क्यों है? Why we want to have a processor in a computer? As I have already told you in the previous lectures, the need of a processor. Yes, tell me. Yes, students. Yes, Faria. Sir, it processes all the data. Okay, because the processor is a brain of a computer and it has to process all the instructions. जो जो काम आप कंप्यूटर को बोलते हैं, फॉर एग्जांपल जो कंप्यूटेशनल रिलेटेड काम होते हैं, जो कैलकुलेशन से रिलेटेड काम होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं कंप्यूटर को जो आप देते हैं, वो जो प्रोसेस होती हैं वो थ्रू प्रोसेसर ही इट विल बी डन. नाउ सो इट इज अ मेजर कंपोनेंट. नाउ अब हम इसको डिस्कस करेंगे वाइडर स्पेक्ट्रम में कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स. अब प्रोसेसर के ऊपर ही हम बात करेंगे. सो बेसिकली इट्स अ ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर. एक बॉडी में अगर ब्रेन ना हो तो क्या हमारी पूरी बॉडी के अदर पार्ट्स काम कर सकते हैं? No, नहीं कर सकते. So for example, अगर हमारा इसी तरह से if the computer does not have a brain like a processor, so it will not work properly because there is no device who can process or instruct any other component. कीबोर्ड को कोई भी बात बतानी होगी तो प्रोसेसर के थ्रू पता चलेगी. मॉनिटर को कोई बात बतानी होगी प्रोसेसर के थ्रू पता चलेगी. रैम को कोई बात बतानी होगी तो प्रोसेसर के थ्रू पता चलेगी. So everything that has to be sent to any other devices, it has to go through the processor. तो प्रोसेसर से होते हुए गुजरेगी. So the processor, as you can see, the processor is also called a brain of a computer. Now, brain means it's a core part. It's a very important part of a computer. Without the without which the computer cannot work. The unit is responsible for all events inside the computer. Now, what are the events? कंप्यूटर के अंदर कौन कौन सा काम हो रहा होता है? फॉर एग्जाम्पल द इनपुट हो रहा होता है, प्रोसेसिंग हो रही होगी, सिमिलरली आउटपुट हो रहा है, इसी तरह से सिस्टम कंट्रोल यूनिट चल रहा है. तो जितना भी काम हो रहा है, all the devices are being controlled by the processor. It controls the internal and external devices as well. Now, what are the internal devices? As I have told you in the previous lectures, that the internal devices are the RAM, the cache memory, the floppy drive, the USB drive, all the peripheral ports. What are the external devices? Monitor, keyboard, okay,
and mouse, webcam. So these are printers, scanners. So these are the devices which are outside of it. So all these devices are being controlled by the processor. So that's why it is the main part of a computer. All the operations of microprocessor perform are called instruction set. अच्छा देखिए, इंस्ट्रक्शंस का क्या मतलब होता है? व्हाट आर द इंस्ट्रक्शंस? व्हाट डू यू मीन बाय इंस्ट्रक्शंस? हिदायत, कोई बात बताना, ठीक है ना? आप किसी को कुछ बात बताते हैं और वो उसको उसी तरह से परफॉर्म करता है. सिमिलरली, इफ आई टोल्ड यू टू डू द वर्क इन सम सर्टेन मैनर, so you have to follow some certain instructions as well. So similarly, the computer, the processor does not do anything without the set instructions. There is a procedure. Okay, हर काम का एक प्रोसीजर होता है. उसको स्टार्ट करना है, उसके अंदर से कोई इनपुट लेना है, फिर प्रोसेस करना है, फिर आउटपुट देना है. तो ऐसा नहीं है कि पहले आउटपुट दे दे, फिर प्रोसेस करे, फिर बाद में इनपुट ले. So it has to be in a sequence manner. So the instructions has to be in the sequence. Okay, ये ऐसा तो नहीं होता जैसे हम कभी टेलर के पास जाएं. भाई देखें, अगर आप फर्ज करें, आप अगर आपको जैसे भी बकरा ईद गुजरी है, तो बकरा ईद की एग्जाम्पल देते हैं. तो बकरा ईद के अंदर हम जब सेक्रीफाइस करते हैं जानवर की, तो व्हाट्स द प्रोसीजर? कि हम पहले हम जाते हैं कैटल फार्म में जाते हैं और वहाँ से जानवर को लेकर आते हैं. ठीक है, अब वो जानवर कोई सा भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल गाय भी हो सकती है, बैल भी हो सकता है, इसी तरह से कैमल भी हो सकता है, और वो गोट भी हो सकती है. सो यू उस जानवर को पहले लेकर आएंगे, उसको फिर आप उसका ख्याल रखेंगे, फिर उसको कुर्बानी वाले दिन सेक्रीफाइस करेंगे. दिस इज द मेजर प्रोसेस. Similarly, the computer performs all the actions as per the set instructions. उसको पहले से बता दिया जाता है कि पहले तुमने ये चेक करना है, फिर ये चेक करना है, फिर ये चेक करना है. तो अकॉर्डिंग टू द सेट इंस्ट्रक्शंस, वो एक पहले से प्रोग्रामर ने, कंप्यूटर जो बनाते हैं, जो प्रोसेसर बनाते हैं, जो कंपनीज, they have already programmed it. They have already saved all those instructions in it. Every processor is different from each other by the instruction set. अच्छा, दुनिया में बहुत सारी कंपनीज हैं जो प्रोसेसर बनाती हैं, जिसमें IBM है, HP है, Intel है, AMD है. So there are lots of companies who made the processors. So हर प्रोसेसर की इंस्ट्रक्शंस अलग अलग होती हैं. उनका मेजर फंक्शंस अलग, यानी कि उनके जो इंस्ट्रक्शन सेट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं. इसी वजह से हमें देखना पड़ता है कि विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर इंस्ट्रक्शन सेट प्रोसेसर. इट्स इंटेल. यू कैन सी इन योर कंप्यूटर एज वेल कि 95% ऑफ द कंप्यूटर जो होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, जो घरों में यूज़ होते हैं, जो ऑफिस में यूज़ होते हैं, उनका जो प्रोसेसर होता है वो यूज़ होता है इंटेल का. Because it's very simple and it's very cheap and easy to process as well. Is it clear to all? Yes, sir. Any questions? Please आप अपना कैमरा ऑन कीजिए. Okay. Now let's see what are the mic को काइंडली जो है ना वो बंद कर दीजिए, माइक बंद कर दीजिए, कैमरास ऑन रखिए. Now what are the things that we have inside the CPU? Now वो जो प्रोसेसर है ना, ये जो एक प्रोसेसर की चिप आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ मैं, इस चिप के अंदर बहुत सारे और फंक्शंस होते हैं. ठीक है, इसका अपना काम तो है. बेसिकली ये एक चिप है, एक बड़े से सिस्टम यूनिट का एक छोटा सा पार्ट है. ठीक है, अब इस एक पार्ट के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स हैं. ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूँ कि एक गली है, ठीक है,
एक गली के अंदर एक घर है, उस घर के अंदर भी रूम्स होते हैं। तो इसी तरह से ये एक जो है, आप समझिए कि एक पूरा सा एक जो सिस्टम यूनिट है उसमें एक छोटा सा घर था। इस जो प्रोसेसर है, उस प्रोसेसर के अंदर बहुत सारे पार्ट्स अवेलेबल है। वो व्हाट आर दोस पार्ट्स? सेवरल यूनिट्स, देयर आर सेवरल यूनिट्स। दिस इज कॉल्ड अ कंट्रोल यूनिट, arithmetic logic unit, registers, and control unit. I have written control unit twice, so it's 3 units basically. Control unit, arithmetic logic unit, and registers. Now let's see कि इनका काम क्या है। देखो सीपीयू के अंदर बहुत सारे काम है। अब एक बात बताइए, एक घर के अंदर बेडरूम अलग होता है, ड्राइंग रूम अलग होता है, टीवी लॉन्च अलग होता है, ठीक है, किचन अलग होता है। सो हर एक एरिया का उसका फंक्शन अलग है। क्या आप बेडरूम में बैठ के खाना पका सकते हैं? नहीं पका सकते। या आप जो है कोई गेस्ट को किचन में बिठा सकते हैं? नहीं बिठा सकते। सो एवरी प्लेस हैज इट्स ओन फंक्शन and has its own instructions. Similarly, the CPU has its own functions. उसके अपने एक जो पार्ट्स हैं, उसके जो सब पार्ट्स हैं, उसके अलग फंक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल कंट्रोल यूनिट का काम डिफरेंट होगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का काम डिफरेंट होगा, रजिस्टर्स का काम भी डिफरेंट होगा। Now, first of all, let's see what is control unit. Now, first of all, you see control unit का काम क्या है? The control unit directs and controls the activities of the internal and external devices. It interprets the instruction fetched from the computer into the computer, determine what data needed, where it is stored, save the result, and send the control signal to the devices. Now, आप अगर किसी भी सड़क, मतलब अगर आप रोड पे जा रहे हो और रोड पे अगर आप देखें तो एक ट्रैफिक कॉप जो होता है, जो ट्रैफिक कांस्टेबल होता है, उसका काम क्या होता है? वो उसका काम ये होता है कि इट बेसिकली डायरेक्ट्स द ट्रैफिक फ्रॉम वन डायरेक्शन टू द अनदर डायरेक्शन। वो राइट साइड की ट्रैफिक को लेफ्ट साइड पे भेज रहा होगा, या स्ट्रेट भेज रहा होगा, या कहीं पर भी भेज रहा होगा। तो उसका मेजर पर्पस ये है कि उस ट्रैफिक कॉप का, सो दैट ट्रैफिक जैम ना हो, किसी का एक्सीडेंट ना हो, और कोई गलत ड्राइविंग ना करे। ओके, similarly the control unit in the computer has the same sort of activities to do. जो भी इंटरनल एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं, जैसे रैम है, कैश मेमोरी है, सीमॉस है, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, मॉनिटर है। अरमीन, या तो आप अपना कैमरा स्ट्रेट कर लीजिए, सही से रख लीजिए, या इसको ऑफ कर दीजिए। अरमीन फातिमा, मैं आपको बोल रहा हूँ। नाउ, तो पहला काम क्या हुआ कि एक्टिविटीज को कंट्रोल करना। फॉर एग्जाम्पल, कीबोर्ड कैसे काम कर रहा है, प्रिंटर कैसा काम कर रहा है, माउस कैसा काम कर रहा है। सो ऑल दोज इंस्ट्रक्शंस हैज बीन कंट्रोल्ड बाय द कंट्रोल यूनिट। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट काम, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है ना कंट्रोल यूनिट का, वो यह है कि इट इंटरप्रेट्स द इंस्ट्रक्शन। इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है? What do you mean by interpret? Interpret. Translate. Translate. Yes. Now, so the translation of the instruction. Now, how the translation of the instruction? For example, we used to enter A. हम A लिखते हैं कंप्यूटर में, मगर कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड A. तो what language it understands? It's called machine language. So it has to be translated into that machine language, and who translate that? It's a control unit. Similarly, it also determines what data needed. For example, अगर आपने कोई
सॉफ्टवेयर को क्लिक किया, फॉर एग्जांपल MS वर्ड को क्लिक किया या कोई गेम को क्लिक किया, तो वो डेटा कहाँ पर पड़ा हुआ है, कहाँ पर सेफ है, उसका क्या रिजल्ट होगा, ये सारी चीजें कंट्रोल यूनिट जो है क्या कहते हैं उसको बताएगा। डेटा कहाँ से लेकर आना है, कहाँ पर सेव करना है, ये सारी बातें जो है कंट्रोल यूनिट के जिम्मे है। इज इट क्लियर? Yes, sir. व्हाट अबाउट हिसान? हिसान, जी सर। आपको समझ में आ रहा है? यस सर। जिन जिन को समझ में आ रहा है काइंडली थम्स अप कर दीजिए ऐसे, ठीक है, सो दैट कुड बी एबल टू अंडरस्टैंड के जो है ना क्या कहते हैं आप लोगों को क्लियर हो जाए। गुड। व्हाट अबाउट निहान, फिजर अब्बास, पुरतलैन? Good. So where it is stored? So the control unit is very important. अगर कंट्रोल, अच्छा इस, अगर मेरा एक सवाल है, अगर कंट्रोल यूनिट ना हो तो इसी तरह से अगर एक ट्रैफिक कॉप ना हो सड़क के ऊपर या रोड के ऊपर, हाईवे के ऊपर ट्रैफिक कॉप ना हो, तो व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नो ट्रैफिक कॉप ऑन द रोड्स? हु विल आंसर मी? लाइमा, टेल मी। अरमीन, आज कोई होमवर्क नहीं है, आज सिर्फ लेक्चर दे रहा हूँ मैं। यस, टेल मी स्टूडेंट्स। सर पे एक्सीडेंट्स होंगे। क्या, दोबारा बोलिए। एक्सीडेंट्स होंगे। एक्सीडेंट्स होंगे, कंजेशन होगा, ट्रैफिक जैम हो जाएगी, ये सारी चीजें जो है क्या कहते हैं कंट्रोल यूनिट भी यही कर सकता है। कंट्रोल यूनिट का काम क्या होगा कि हर डिवाइस जो है क्या कहते हैं आपस में एक साथ काम करे, ठीक है, उसमें कोई भी डिवाइस हैंग ना हो रही हो, हर डेटा जो है, जो भी डेटा स्टोर किया जाए या वॉट एवर द डेटा इज नीडेड टू प्रोसेस इट, तो वो क्या करे कि उसको सॉल्व करके दे। ओके, so this is the major responsibility of a control unit. Now the third one is arithmetic logic unit. Okay, now this is the second part. Okay, and यहाँ पर हम अपने lecture को end करेंगे, ठीक है। We will discuss the registers and the clock unit in the next class. Okay, the arithmetic logic unit is basically where actually the computation takes place. मतलब आपने कंप्यूटर के अंदर प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, परसेंटेज निकालनी है, कोई कैलकुलेशन करनी है, कुछ भी करना है कैलकुलेशन रिलेटेड, just remember this word. If you want to do any kind of a calculations, so all the calculations done in the CPU, but where in CPU? It's in arithmetic logic unit. Okay, so CPU के 4 parts हैं. Okay, number 1 control unit, number 2 arithmetic logic unit, number 3 registers, number 4 clock unit. Now we have discussed control unit. तो ये एक पूरे CPU का पार्ट है, इसी CPU में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी। सो जितनी भी कंप्यूटेशन है, वॉट एवर द कंप्यूटेशन, जितनी भी चीजें हैं जो कैलकुलेशन से रिलेटेड है, सो वॉट एवर द कैलकुलेशन इज बीइंग डन, इट्स डन थ्रू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। So you can see that this is, it is written that arithmetic means so anything that is related to the mathematics. कोई भी चीज मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो वो क्या होती है, अर्थमेटिक होती है। सो वी कैन ऑल्सो, अगर मैं आपसे पेपर के अंदर, क्विज के अंदर या ऐसी क्वेश्चंस के अंदर पूछूं व्हाट इज ALU, सो यू डू नॉट हैव टू गेट कंफ्यूज्ड
but it is the short form of arithmetic logic unit. So ALU is arithmetic logic unit. So you have to remember this thing. It consists of circuits which performs arithmetic operations. Now ये एक इसके अंदर सर्किट्स बने होते हैं छोटे छोटे. ये देखिए, ये जो आप इसके अंदर सर्किट्स दिख रही हैं, ये जो ब्लैक कलर की चिप्स नजर आ रही हैं आपको, इसके अंदर जितने भी मिलियंस ऑफ सर्किट्स होते हैं, मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ सर्किट्स होते हैं, दो सर्किट्स परफॉर्म्स द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. Getting the point? Students, is it clear? Just Yes, sir. thumbs up कर दीजिए. Good. Right. So hopefully, inshallah, we will discuss the registers and the remaining part of the clock unit as well. Okay. So we have got 2 minutes. If any one of you have a questions, please they can ask me. Similarly, if any one of you does not mark their present, so please tell me then your name so that I can mark your present as well. So total 8 students are there. So let me check how many students are there. One, two, three, 4, 5, 6, 7. Right class. So this lecture is being on the ये classroom, Google Classroom के ऊपर lecture available है. Try to read all the content. ठीक है. अब मैं आपको ये बता दूं कि आपका क्विज जो होगा वो कहाँ से आएगा. ठीक है. क्विज जो है ये हमारी बायोस चिप तक जितना भी मैंने पढ़ाया है यहाँ तक आएगा. ये ऑनलाइन क्विज होगा और ये ऑनलाइन क्विज जो है क्या कहते हैं बायोस चिप शुरू से लेके आखिर तक जितनी भी चीजें मैंने बायोस चिप तक पढ़ाई हैं ये सब इंक्लूड होंगी. इसमें मोस्टली हो सकता है 10 to 15 MCQs होंगे. उसका जो है क्या कहते हैं वो आपको आंसर करना होगा. ओके guys? Yes, sir. ठीक है. अल्लाह हाफिज.